Hi guys, today we will study measles in our series of infectious diseases. Measles, also known as rubeola. This is different from rubella, which is German measles, right? Also known as 3 days measles. It is a form of exanthematous illness. By saying exanthematous illness, I mean fever will be associated with rash. This is rash over skin known as exanthem. This rash typically appears at 4th day of onset of fever. इस मीजल्स में एक और रैश होगा जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे होगा, दैट इज नोन एज एनेंथम, एंड दिस म्यूकोसल रैश इज आल्सो नोन एज कॉप्लिक स्पॉट. दिस occurs at 2nd to 3rd day of onset of fever, right? As you guys already know, this is caused by RNA containing virus, right? And these are typical body rashes. This rash is of maculopapular type. This rash usually starts from head and neck region and then gradually progresses downwards, that is cephalocaudal in direction, and this usually spares your palms and soles, right? So moving ahead, what you guys are able to see over here, this is rash over buccal mucosa, ananthem, that is also known as Koplik spot. कब arise होगा? From 2nd to 3rd day of onset of fever, right? Then निमोनिक्स मेक आर लाइफ वेरी इजी. तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल निमोनिक है, वेरी सिक पेशेंट्स मस्ट टेक डबल टैबलेट्स. तो निमोनिक किसका है? दिस इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ फीवर विद रैसेस, आई मीन एक्जेंथमेटस इलनेस. 7 लेटर्स, वेरी सिक पेशेंट्स मस्ट टेक डबल टैबलेट्स. वेरी इज फर्स्ट लेटर, इसका क्या मतलब हुआ? वी स्टैंड फॉर वेरिसेला, और यहाँ पे जो रैस आएगा वो फीवर वाले दिन ही आ जाएगा, दैट इज ऑन द डे ऑफ ऑनसेट ऑफ फीवर. So very sick patients must take double tablets. V stands for varicella. Varicella is chicken pox, right? यहाँ पे जिस दिन फीवर आएगा उसके 24 घंटे में रैश आ जाएगा. 2 S stands for scarlet fever. 3 you have letter P, so this stands for pox, that is smallpox which has been eradicated. Must, 4th letter measles. M stands for measles. This is center of attraction for today. We have already talked that the skin rash typically appears at 4th day of onset of fever. Day 5, again you have a T. T stands for typhus fever. D for double tablets, this is 6th letter, and this stands for dengue. 7th day rash occurs sometimes in case of typhoid, right? As you guys already know, this is known as rose spots, and you guys like red rose, therefore I have made it red. Fine. What else? Again, measles virus, RNA containing virus, right, of family paramyxovirus. What is the mode of transmission? As this virus resides in respiratory epithelium, therefore mode of transmission is usually coughing, sneezing, right? That is by means of droplets. This is very infective disease, right? So secondary attack rate is as high as 80%. Suppose a child suffering from measles comes in contact with unimmunized child, then chances of getting infection for unimmunized child is very, very high, as high as 80%. What is the incubation period? Incubation period is about 10 to 14 days, right? From the onset of entry of pathogen into body till appearance of first symptoms. And what is the infectivity period? As you guys know, this is very contagious disease, right? And the secondary attack rate is quite high. So infectivity period needs to be known for the time you need to isolate your patient. So you can relate it with rash. 4 days before rash and 5 days after appearance of rash, the patient remains infective. तो infectivity period कितना हो गया? Total infectivity period is of 9 days. Too simple to understand. We have mentioned here 4 days before rash and 5 days after onset of rash. Again, during this period, patient will be very infective and the secondary attack rate is quite high. This is not only about fever and rashes. You also give few systemic symptoms like cough, coryza, and conjunctivitis. Triple C. This is again a simple mnemonic, very important to memorize the other features of measles disease. Conjunctivitis. Right, which type of conjunctivitis? This question is very oftenly being asked. Conjunctivitis, this will be of non-purulent type.
पुरुलेंट पस फॉर्मेशन ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, यहाँ पे क्या है वायरल इलनेस है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंजक्टिवाइटिस होगी दैट विल बी नॉन पुरुलेंट, राइट. व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक skin rash, right, it will be maculopapular and it will start from head and neck region, right, and it will progress downwards, that is cephalocaudal direction. एक important चीज़ ये है कि usually palms and soles spared रहते हैं, right. Again the clinical features, patient will suffer from high grade fever, ananthem, that is Koplik spots, that is present over buccal mucosa opposite lower second molar. What about exanthem? We have already discussed by that mnemonic that this exanthem will appear right from 4th day of onset of fever. 3C, cough, coryza and conjunctivitis. Okay. Now German measles is totally different thing, right? German measles, also known as rubella, is 3rd day measles, 3-day measles, right? There are various phases. You have prodromal phase, that is pre-eruptive phase. In this phase, a person will suffer from fever with rash along with body ache, but this rash will be ananthem, right, not body rash. This is Koplik spot which appears on 2nd to 3rd day of onset of fever. Eruptive phase, right, the phase during which skin rash will start to appear. This is usually 4th day from onset of fever. Later on patient will improve, that is post eruptive phase, and there will be no scarring and rashes will fade away. Complications, there will be few of the early complications, be it otitis media, pneumonia which is also known as giant cell pneumonia, diarrhea and even encephalitis, right. So these may be also life threatening in case of measles infection. There is one more specific complications, काफ़ी late complication है जिसका average time भी है 8 to 10 years, known as subacute panencephalitis. What is this SSPE? This is fatal complications. कोई treatment नहीं है, थोड़ा बहुत promise हमें isoprenosin ने दिया है, right? This drug is being used these days. So SSPE is very late complication, right, and it is almost fatal. यहाँ पे हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं. वेरिसेला जोस्टर वायरस, दैट इज चिकन पॉक्स वायरस, कॉजेस चिकन पॉक्स और वेरिसेला. ये बॉडी में कभी कभी रह जाता है, इट स्टेज डोरमेंट इन डॉर्सल गैंग्लियन और सेंसरी गैंग्लियन. वहाँ से आगे चल के एक्टिव हो सकता है, राइट, और एक्टिव हो जाएगा तो क्या कराएगा, शिंगल्स. ओके, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस कैन म्यूटेट इन बॉडी एंड चेंज इनटू हर्पीज जोस्टर वायरस एंड इट कैन कॉज शिंगल्स. चिकन पॉक्स एक ही बार होगा, राइट, लेकिन चिकन पॉक्स जिसको हुआ है उसको आगे चल के शिंगल्स हो सकते हैं. इन द सेम वे यू हैव मीजल्स वायरस विच कॉजेज मीजल्स, और कभी कभी ये बॉडी में म्यूटेट होकर स्लो वायरस में चेंज हो जाता है एंड इट कैन कॉज SSPE. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैनएन्सेफलाइटिस, राइट. व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? और अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो डायग्नोसिस क्लिनिकल है. कभी कभी हम लोग IgM एंटीबॉडीज़ ब्लड में देख लेते हैं अगेंस्ट मीजल्स वायरस. यू कैन गिव पैरासीटामॉल, कॉम्बीफ्लॉम, आइबुजेसिक एसिड फॉर पेन रिलीफ एंड फॉर एज ए एंटीपायरेटिक. पैरासीटामॉल कितना देते हो? एट द रेट 15 मिलीग्राम पर kg पर डोज. SOS, राइट, बच्चों में कोई भी डोज देते हो आप तो वेट के हिसाब से देते हो. यूजली नो एंटीवायरल्स आर नीडेड, कोई इफेक्टिव भी नहीं है. अगर चिकन पॉक्स होता है यू गिव एसाइक्लोवीर, लेकिन यहाँ पे कोई एंटीवायरल नहीं देना है. कभी कभी रिबाविरिन यूज़ किया गया है. एंटीबायोटिक्स आर यूजुअली नॉट नीडेड, बट एनी वायरल इन्फेक्शन डिमिनिशेज योर इम्यून रिस्पॉन्स, राइट, सो इट कैन लीड टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो या उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं, राइट. और इसमें अगर ड्रग ऑफ चॉइस देखा जाए तो एमॉक्सीक्लेव. देन विटामिन ए शुड बी गिवन, राइट. विटामिन ए डिक्रीजेज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड ऑल्सो इट डिक्रीजेज ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ इलनेस. तो ये आपका ट्रीटमेंट पार्ट हो गया, राइट. पैरासीटामॉल एट द रेट 15 मिलीग्राम पर kg. व्हाट अबाउट रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. वी कैन गिव एमॉक्सीक्लेव, ये इसका मार्केटेड फॉर्म है, at the rate 40 milligram per kg per day in 3 divided doses. It can be given for 1 week. Role of vitamin A in measles is very important, right. Vitamin A decreases duration of illness and even decreases severity, right, by multiple mechanisms.
So usually 1 dose is recommended, but sometimes even up to 3 doses can be given. डोज क्या होता है? विटामिन ए आप लोग इम्यूनाइजेशन वगैरह में भी देते हो, राइट? इन लेस देन 1 ईयर ओरल डोज इज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट. इफ चाइल्ड इज ऑफ मोर देन 1 ईयर देन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर डोज, राइट? तो हमारे पास यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस है उसके हिसाब से डे 1 पे दे सकते हैं, डे 2 पे दे सकते हैं, और एक डोज और दे सकते हैं डे 14 या डे 28 पे. ओरल प्रिपरेशंस भी हैं. दिस इज सिरप एक्वासॉल विच इज सिरप विटामिन ए, एंड यू हैव ऑल्सो इंजेक्शन एक्वासॉल विच कैन बी गिवन इंट्रामस्कुलरली, राइट? ओरल डोज का जो IM डोज होगा वो आधा होगा, तो हम लोग कह देंगे हाफ ऑफ ओरल डोज. तो इसके अकॉर्डिंग अगर मान लो कोई बच्चा 2 साल का है, उसको मीजल्स हुआ है, तो डे 1 पे कितना देंगे? 1 साल से बड़ा है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट. डे 2 पे भी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, एंड अ डोज इज ऑल्सो गिवन ऑन डे 14 और डे 28. यहाँ पे भी हम लोग कितना देंगे? राइट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट. तो विटामिन ए इज ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मीजल्स. What about measles vaccination? As you guys already know, this is vaccine preventable disease. Measles. Again यहाँ पे एक निमोनिक है, MSc, right? Master of Science. M stands for measles. SC stands for subcutaneous. So this vaccine is given subcutaneously, right, over right shoulder. 3 doses, 9 months, 15 to 18 months, and then at 5 years. 9 month पे आपके पास पहला डोज है, फर्स्ट बूस्टर, एंड देन यू हैव सेकेंड बूस्टर, राइट? आजकल स्टैंड एलोन मीजल्स वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, राइट? हम लोग इसको एज अ कॉम्बो वैक्सीन देते हैं. पहले MMR देते थे, राइट? आजकल MR वैक्सीन्स ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे स्टैंड एलोन वैक्सीन है, पहले आती थी. अब आजकल हमें क्या मिलती है? MR वैक्सीन्स विच कंटेन्स मीजल्स एंड रूबेला, राइट? MMR वैक्सीन ये भी काफ़ी फेमस था पहले, अब हम लोग MR से इसको रिप्लेस कर रहे हैं, राइट? Post exposure prophylaxis, as we have already discussed, secondary attack rate is quite high, right? अगर कोई अनइम्यूनाइज्ड बच्चा किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आता है, he can develop measles disease, right? He can develop measles. तो measles वैक्सीन कब दे सकते हैं? अगर एक्सपोजर को 72 आवर्स से कम हुआ हो, राइट? तो बॉडी के पास इतना टाइम है कि वैक्सीन दिया, बॉडी ने एंटीबॉडी रिस्पॉन्स किया, और उसके बाद एंटीबॉडी ने वायरस को न्यूट्रलाइज कर दिया, राइट? तो यू कैन वैक्सीनेट द अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड जो कांटेक्ट में आया है. व्हाट अबाउट मीजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन? अगर और ज़्यादा टाइम हो गया है, राइट? 72 आवर्स से ज़्यादा हो गया है, तो और 7 दिन से कम है, तो बॉडी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वैक्सीन लेने के बाद एंटीबॉडी बना सके और उसके बाद उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर सके. तो यहाँ पे हमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ देनी पड़ेंगी, दैट इज़ मीजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन. सो दिस इज़ पैसिव इम्यूनाइजेशन. बॉडी ने एंटीबॉडीज़ नहीं बनाया, हमने बाहर से दे दिया, लेकिन जब वैक्सीन देते हैं इट इज़ फॉर्म ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन. दिस इज़ लॉन्ग लास्टिंग, वेयर एज पैसिव इम्यूनाइजेशन इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, बट मौके पे काम आ गया कि उसको एक्टिव डिसीज ना हो, राइट? सो यू हैव पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस एंड यू हैव प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस इन फॉर्म ऑफ रूटीन वैक्सीनेशन. तो कुछ MCQs भी कर लेते हैं. हम लोगों ने टॉपिक को काफ़ी क्रिस्पली डिस्कस किया है यहाँ पे, तो 1-2 यहाँ पे MCQs ले लेते हैं, राइट? इससे सिंपल MCQ हो नहीं सकता. कॉप्लिक स्पॉट्स हम लोगों ने कहा था, म्यूकोसा पे भी रैश मिल सकता है, दैट इज़ एनेंथेम. किस में मिलेगा? स्मॉल पॉक्स में मिलेगा नहीं. जर्मन मीजल्स और 3 डे मीजल्स, दैट इज़ रूबेला, इससे भी कोई मतलब नहीं है. मम्स को हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है. दिस इज़ योर मीजल्स विच इज़ नोन एज रूबियोला, राइट? तो आंसर इज़ रूबियोला. कहाँ मिलता है? बक्कल म्यूकोसा, राइट? ऑपोजिट सेकेंड मोलर, ऑपोजिट सेकेंड मोलर. डायग्राम भी हम लोगों ने देखा था, राइट? एंड देन यू हैव SSPE, राइट? इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. SSPE इज एसोसिएटेड विद विच इन्फेक्शन, राइट? यू हैव रूबेला, यू हैव जर्मन मीजल्स, दोनों बेसिकली सेम ही हैं. यू हैव चिकन पॉक्स, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा. इट इज़ लेट कॉम्प्लिकेशंस एंड वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स डिसीज, राइट? एंड इट इज़ फेटल. और हम लोगों ने डिस्कस किया था आइसोप्रिनोसिन आजकल यूज़ किया जा सकता है, राइट? आई होप इतना मीजल से काफ़ी कॉन्सेप्ट तुम लोगों का क्लियर हो गया है. सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑन चिकन पॉक्स. बाय, टेक केयर.